Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in Quality Assurance class. Today's topic is ICH Guideline Part 2 and QSEM Stability Study. QSEM, what is the QSEM? Q Quality, S Safety, E Efficacy, and M Multidisciplinary Guidelines. In this, we will study first what is the ICH. ICH is the International Conference of Harmonization. Yes, ICH. It is the technical requirement, yes, for registration of pharmaceutical products for the human use. This is the ICH. Brief overview. Today's topic is QSEM. Yes, brief overview यदि हम पढ़े सबका तो Q क्या है? क्वालिटी गाइडलाइन, and S is the safety guideline, E efficacy guideline, and M multidisciplinary guideline. Yes, and QSEM. In Q means quality, we will study or discuss about the stability, impurity testing, and GMP. Yes, quality manufacturing, good manufacturing practice. If we discuss about the S, what is the S? S means carcinogenicity, genotoxicity, and reprotoxicity. What is the carcinogenicity? Carcinogenicity is that substance that produce cancer. Yes, which substance that produce cancer? This is the carcinogenicity. If we talk about the genotoxicity, what is the genotoxicity? Means defects occur in the genes. Means genetic toxicity is known as the genotoxicity. Yes, reprotoxicity मतलब toxicity produced in the reproduction. Yes, toxicity related to the reproduction. This is the S. If we discuss about the E means we will study about the clinical trial in pharmacogenomics. Clinical trials in the as well as human and as well as animals. If we discuss about the pharmacogenomics, what is the pharmacogenomics? Study of the genes. We will study in the pharmacogenomics. Last one is M, in which we will study about the MAD-DRA, CTD, and electrodistandard. What is the all three? First one is MAD-DRA. MAD-DRA is a terminology. CTD is also an electronic standard also, in which we will, if we solve in the detail, that is the ICH medical terminology. I am MAD-RA. ठीक है, मैड मतलब मेडिकल, डी मतलब ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स. इफ वी अबाउट द CTD, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट. ESTRI मतलब द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन. Yes, this is the brief overview. Then we will discuss one by one in detail. First one is quality guideline. In quality guidelines, first one is Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, and QS. Yes, in Q1 we will study about the stability. Yes, stability is the most important. In this same topic we will discuss next is stability study. Q1 is the analytical validation. In Q3, these are the guidelines. Yes, we will study about the what is the Q1 guideline cover. Q1 guideline cover the stability. Yes, Q2 guideline analytical validation. Q3 is the impurity. Q4 pharmacopoeia. Yes, these all are the most important that cover in the objective and MCQ also, and these are the coming one by again in next slides. Yes, Q4 guideline for the pharmacopoeia. Q5 is the quality of biotechnology product. According to these we will study. एंड Q क्वालिटी गाइडलाइंस में जब हम बात करें Q1 से Q1 की, सिंगल Q1 की बात करें, यस, तो Q1 के अंदर Q1A से Q1F. यस, Q1A to QF is the only guideline for the stability. Yes, Q1 stability testing of new drug substance. यदि हमें न्यू ड्रग सब्सटेंस की स्टडी करनी है, उसके बारे में हमें टेस्टिंग देखनी है, तो यू हैव टू फॉलो अबाउट द Q1A गाइडलाइन. यस, सेम प्रोटोकॉल यदि हम फोटो स्टेबिलिटी की देखते हैं, लाइट से कोई लाइट से डिस्ट्रॉय तो हमारा प्रोडक्ट, किसी को हमें डार्क लाइट में रखना होता है, किसी को हमें
नॉर्मल हमें लाइट में रखना होता, तो यदि हम फोटो स्टेबिलिटी की यदि टेस्टिंग भी देखें, उसकी गाइडलाइन कौन सी होगी, Q1B। इसी अकॉर्डिंग हमारी न्यू डोजेस फॉर्म की गाइडलाइन होगी Q1C। ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिज़ाइन की होगी Q1D। इसी अकॉर्डिंग यदि हम स्टेबिलिटी डाटा का इवैल्यूएशन करेंगे तो इट कम इन द Q1E। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी डाटा पैकेज के रजिस्ट्रेशन को देखेंगे तो हमें Q1F रेगुलेटरी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। Q2R1 जैसे Q1 है, जैसे Q2R1 फॉर द वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट एंड मैथडोलॉजी, सभी मैथडोलॉजी और टेक्स्ट रिलेटेड सभी हम Q2R1 में स्टडी करेंगे। यस, इम्प्योरिटीज, अब हमने बात करी स्टेबिलिटी की, सेकेंड वन गाइडलाइंस है इम्प्योरिटी। यस, इम्प्योरिटी क्या चीज़ है, अब हमें जो सेकेंड है QS की सेफ्टी वाली, ठीक है। इम्प्योरिटी Q1 फॉर द फार्माकोपिया। इसी अकॉर्डिंग दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम। A question came that what Q1 guidelines cover pharmacopoeia, second one is guideline for residue solvent, third one is guideline for element impurity, and fourth one is impurity nudum. Then what is the right answer? The right answer is the Q1 cover the pharmacopoeia. Yes, if we pharmacopoeia हम देखें तो Q4 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारी pharmacopoeia के अंदर सभी impurities को हम टेस्ट चेक करेंगे। इसी अकॉर्डिंग Q4A, Q4B, Q4 यस B एनेक्सर 1, 2, इसी अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें पढ़े। एनेक्सर इज द एडिशनल अटैचमेंट ऑफ द गाइडलाइन। इसी अकॉर्डिंग Q1B माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, Q4B इज द स्टेराइल प्रोडक्ट टेस्ट, Q4B माइक्रोबियल एग्जामिनेशन किसका, नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट का। Q4B क्या, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जनरल चैप्टर है Q4B। इसी अकॉर्डिंग Q4B यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस फॉर्म, ये हम इसके अंदर जो हम इसके अकॉर्डिंग अपन किस एनेक्सस में, किस चैप्टर में, किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वी विल स्टडी। यस, Q5A से लेके Q5A क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, यदि आपने देखा हो तो पहले वाले स्लाइड्स में इस पर भी रेड मार्क था, मतलब दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Q1A and QB specification is the most important because in the next topic we will stability study. Q6A and Q6 is the most important क्योंकि ये स्टेबिलिटी स्टडी रिलेटेड जो भी न्यू ड्रग सब्सटेंस की, न्यू ड्रग प्रोडक्ट की हम लोग केमिकल सब्सटेंस के हम जो भी प्रोसीजर देखेंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखेंगे, वो सब Q6A के अंदर। Q6B की बात करें तो इसके अंदर सभी स्पेसिफिकेशंस किसके, बायोटेक्नोलॉजिकल बायोलॉजिकल के होंगे। Q7 किसके लिए है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल API। Q8 फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q9 क्वालिटी स्टेटमेंट। इसी अकॉर्डिंग हमें इन गाइडलाइन में कौन सी गाइडलाइन कवर होती है। सेकेंड वन इज सेफ्टी, Q कंप्लीट है, फर्स्ट क्वालिटी देन सेकेंड सेफ्टी। इसके अंदर हमने बात की थी कार्सिनोजेनेसिटी, यस जेनेटोटॉक्सिसिटी, और इसके बाद हमने बात की रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। यस, तो हाँ, यदि कार्सिनोजेनेसिटी की बात करें तो इट कम इन द S1A, क्लियर। S2B में हमारा क्या आएगा, जीनोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अब S6 की बात करें तो रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, क्लियर। ये तीनों आपके यहाँ इंपॉर्टेंट रखेगी रिलेटेड टू स्टेबिलिटी गाइडलाइन के अंदर, कार्सिनोजेनेसिटी, यस जेनेटोटॉक्सिसिटी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। अब थर्ड वन इज एफिकेसी, QSE, थर्ड वन E। Q हम क्वालिटी डिस्कस कर चुके हैं, S स्टेबिलिटी एंड देन S सेफ्टी, देन अब एफिकेसी। यस, अब लास्ट वन रहेगा मल्टीडिसिप्लिनरी। अब एफिकेसी वाली बात करें तो एफिकेसी में E1 से लेके E19, E1 E2 के अंदर 2 आएंगे जिसके अंदर A और F आएगा, क्लियर। ये जो हम E1 की बात करें तो जब हम क्लिनिकल सेफ्टी की बात करें तो लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए हमें E1 काम आता है, ओके। E2 किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे ही हम लोग ये सभी गाइडलाइन इसको अकॉर्डिंग रिलेटेड टू एफिकेसी, मतलब ड्रग का इफेक्ट, यस दिस इज द एफिकेसी। अब M इज फोर्थ वन इज मल्टीडिसिप्लिनरी, यस फोर्थ वन के अंदर हम लोग 3 चीज़ें बात की थी, CTD,
मैट DRA, यस, और अपने STD, ठीक है। CTD क्या था, देखा था आपने, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड्स थे, डॉक्यूमेंट था, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं ये। और आपके मैट DRA क्या था, मेडिकल ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स था, और इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड, तीनों चीज़ों की बात की थी। ये तीनों आपकी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव और MCQ में कवर होता है। यस, अकॉर्डिंग टू वी विल स्टडी ऑफ द M8, M9, M10। अब हमारा दूसरा टॉपिक आज के में, फर्स्ट टॉपिक था ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू ऑन QSEM। सेकेंड वन है स्टेबिलिटी गाइडलाइन। स्टेबिलिटी गाइडलाइंस क्या है हमने पढ़ा था। अब स्टेबिलिटी गाइडलाइन Q6 और Q6A और B आएगा। यह स्टेबिलिटी क्यों करते हैं, जब भी कोई हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, न्यू प्रोडक्ट की हमें डिटर्मिनेशन, न्यू प्रोडक्ट की हम सब कुछ करना है, ओके। देन आपका ये आता है कि स्टेबिलिटी स्टडी को हम भी, जब कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को उसकी फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी को जब हम स्टोरेज कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इन सबको प्रोवाइड करा के हमारी टैबलेट, हमारे कैप्सूल, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसी से वो लास्ट में स्टोरेज कंडीशन पर राइट डाउन होता है कि इट इज स्टोर इन द 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज एक्सपायरी डेट क्या रहती है कि इतने टाइम तक हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है, जो भी प्रोडक्ट है, स्टेबल है, तब हम उसकी एक्सपायरी डेट को डिसाइड करते हैं। तो स्टेबिलिटी गाइडलाइंस बोलती है कि हमें प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी चेक करना है। डेफिनेशन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मे बी डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल मेंटेन। उसमें इतना मेंटेन एबिलिटी होना चाहिए कि वो मेंटेन कर सके जो जो अलग अलग प्रोवाइड करा रहे हैं, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टोरेज एंड द यूजेस बाय द पेशेंट। पर्पस क्या है इसका स्टेबिलिटी टेस्टिंग का, कि ये हमें एविडेंस देता है किस चीज़ के लिए, कि कौन सी ड्रग को हमें कैसे उसको सेफ रखना है, उसके ऊपर हमारा अलग अलग इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। यदि कोई लाइट से ख़राब होती तो हमें उसको डार्क रूम में रखना होता है, ये अंधेरे में। और कुछ ऐसी ड्रग्स है जो अंधेरे की वजह से डिकम्पोज हो जाती है। तो ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उस पर हम लोग अपने प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं कि ये इस अकॉर्डिंग ये ठीक रहेगी, इस अकॉर्डिंग इसका एफिकेसी ज़्यादा होगा। दैट्स वाई इन्वायरमेंट फैक्टर कौन कौन से हो गए, टेम्परेचर हम अलग अलग प्रोवाइड कराएंगे, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, फिर उसके बाद उसको फ्रीज में रखेंगे, उसके बाद फ्रीज़र में रखेंगे। तो ऐसे अलग अलग लाइट्स में रखेंगे, बिना लाइट में रखेंगे, ह्यूमिडिटी को हम बदल बदल के देखेंगे, टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करेंगे। इस अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को क्या इन्फ्लुएंस आता है, क्या प्रोडक्ट में क्या इफेक्ट आता है यदि हम अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं, और किस टेम्परेचर पर, किस कंडीशन पर हमारी टैबलेट एकदम स्टेबल है, हम उसको नोट करते हैं और उसको हम आगे डेवलप करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे सेल्फ लाइफ टू ड्रग प्रोडक्ट, रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, कुछ भी बात कर दी अब हमने। अब देखिए स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल फॉर द ड्रग सब्सटेंस कौन से, जनरल, स्ट्रेस टेस्टिंग। अब इनको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए जनरल क्या क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिलेक्शन ऑफ द बैच, कंटेनर क्लोजर, स्पेसिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी, स्टोरेज कंडीशन, स्टेबिलिटी, वैल्यूएशन स्टेटमेंट। अब हम इतने अलग अलग तरीके से हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। यस, बात करें यदि जनरल की, तो जनरल अलग अलग टेम्परेचर पर हम देखेंगे। स्ट्रेस टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसमें अपने प्रोडक्ट पे स्ट्रेस प्रोवाइड कराते हैं। लेट्स डिस्कस करते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स डिग्रेडेशन। हम अपने प्रोडक्ट पर अलग अलग तरह की फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे एक अलग अलग इफेक्ट हो। यस, क्या क्या चीज़ें, स्ट्रेस टेस्टिंग द ड्रग सब्सटेंस कैन हेल्प आइडेंटिफाई द लाइकली डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। ओके, इसमें बताता है कि यदि किस टेम्परेचर पर, किस पर हमने फोर्स अलग अलग प्रोवाइड किया, तब अब क्या होगा कि डिग्रेड किस पर हुआ हमारा प्रोडक्ट, हम पहचान जाएंगे कि अब हमारा प्रोडक्ट किस पर डिग्रेड हो रहा है। तो वो हमारे लिए, प्रोडक्ट के लिए एकदम कंडीशन सही नहीं है। तो जो भी हम बात करते हैं, इट कैन हेल्प द
which can in turn help establish the degradation pathway. Yes, degradation pathway and entrancing in natural stability of the molecule. Yes, डिग्रेड किया हमने, प्रोवाइड किया, अब हमको पता चल गया कि हमारी नेचुरल स्टेबिलिटी क्या है हमारे प्रोडक्ट की. स्ट्रेस टेस्टिंग लाइकली टू कैरिड आउट सिंगल बैच. अभी हमें सिंगल बैच के साथ करना है किसी भी ड्रग सबसे. अब आपके क्या क्या टेम्परेचर देखो, शुड क्या होना चाहिए, हमें स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या ध्यान रखना है. फैक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एंड ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर आप कम ज़्यादा करके देखिए, ह्यूमिडिटी क्या है, इससे और इससे ज़्यादा हो. ठीक है. एंड वेयर अप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन फोटोलाइसिस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस. इन डिफरेंट कंडीशन में हम अपने स्ट्रेस टेस्टिंग. सिलेक्शन ऑफ द बैचेस. यस, सिलेक्शन क्या रहेगा बैच का, एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैचेस सिलेक्शन के लिए. ठीक है, वहाँ स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए सिंगल बैच को ले रहे थे प्राइमरी, एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैच ऑफ द 3 हमें प्राइमरी बैच लेने ड्रग सब्सटेंस के लिए, हमें सिलेक्शन करने के लिए. ठीक है. अब वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं पूरी प्रोडक्शन स्केल को. ठीक है, 3 प्रोडक्शन बैच बिल्कुल ठीक चला गया तो अब सारा क्लियर होगा, सही जाएगा. कंटेनर क्लोजर सिस्टम को कहते हैं कि हमें जो हमने डिफरेंट कंटेनर क्लोजर, पैकिंग क्लोजर मतलब लिड कंटेनर जिसके अंदर हम रख रहे हैं प्रोडक्ट को, हम ये भी चेक करते हैं उससे कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है, तो वो सब भी हम स्टेबिलिटी चेक करके जो आपने स्टेबिलिटी स्टडी के बाद आपने जो बताया उसी में ही आपको ऑलवेज पैक इन द कंटेनर क्लोजर सिस्टम दैट द सेम पैकेजिंग प्रपोज फॉर द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कि इस वाले टैबलेट को गाइडलाइन में बताया है कि इस स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए, इस स्टोरेज में ही कंटेनर क्लोजर उसके लिए ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सेम पैकिंग प्रपोज स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिए, उसी के अकॉर्डिंग हमको पैक करना है. ओके. स्पेसिफिकेशंस क्या है, स्पेसिफिकेशन सब लोग जानते हैं, हम क्यूसी के अंदर जो भी टेस्ट वगैरह की वो सब चीज़ें हैं. स्पेसिफिकेशन विच इज़ लिस्ट ऑफ टेस्ट. यस, कौन सा डिसइंटीग्रेशन, डीटी, रिजोल्यूशन, फ्राइबिलिटी, रेफरेंस ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, हम जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए वो सब. प्रपोज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब जैसे किसी का होना चाहिए 30 to 35. ठीक है. अब ये एक क्राइटेरिया है, अब इसी के बीच में अपना आना चाहिए रिजल्ट. तो एड्रेस इन द ICH Q6A जो आपको बोल रही थी, आपको ध्यान में रखना है ICH Q6A एंड Q6B जो बात कर चुके थे पहले ही. अब टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, देखो हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं. देखिए समझना चाहिए, फॉर लॉन्ग टर्म एट द एक्सीलरेटेड स्टोरेज एंड फॉर इंटरमीडिएट. ठीक है. इसके अंदर लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, कैसे लिए देखिए, पहले 1 साल के अंदर हमें उसको एवरी 3 मंथ में टेस्टिंग करनी है, तो 4 टाइम हो गई. फिर दूसरे साल में एवरेज 6 मंथ में, फिर एनुअली इस अकॉर्डिंग टेस्ट करना है. मीन्स फर्स्ट वाले ईयर में जब हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं तो जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर हमें 3 महीने में 4 बार करने, क्योंकि हर 3 महीने मतलब 12 मंथ तो 4 टाइम. यदि हमें नेक्स्ट ईयर देखना है तो 6 मंथ में 2 बार. यदि हम थर्ड में देखें तो एनुअली 1 बार. तो अब आपका पता चल जाएगा कि सारी लॉन्ग टर्म स्टडी इस अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी की होती है. यदि हम एसिलरेटेड बढ़ते हुए स्टोरेज कंडीशन में बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए 3 पॉइंट लेंगे हम. 3 पॉइंट कैसे, जब हमारा ड्रग मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर उसके बाद 3 मंथ में 6 मंथ पे 3 पॉइंट. अब इसको बोलते हैं 3.6 में कंप्लीट हो गई तो हम इसको बोलते हैं 6 मंथ स्टडी रिकमेंडेड. इसके अंदर हम बोलेंगे 12 मंथ. कैसे, 4 पॉइंट लेने हमें, 0, 6, 9 एंड 12. ठीक है, 4 पॉइंट लेने हैं इसके अंदर, तो इसको 12 मंथ स्टडी बोलेंगे. स्टोरेज कंडीशन क्या है ये स्टूडेंट, स्टोरेज कंडीशन क्या है. अब जनरल केस की बात कर रहे हैं. जनरल केस में जो हमने 3 पढ़ी, लॉन्ग, इंटरमीडिएट, उन तीनों के अंदर हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं. प्लस माइनस का मतलब क्या है कि 23 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है, मतलब 25 ± 2. और इसका ह्यूमिडिटी ±5 मतलब 55 भी हो सकता है और 65 भी हो सकता है. ठीक है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म. ये कितने के लिए की गई, हमने 12 मंथ के लिए. ठीक है. अब हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में क्या था कि हमें जो इंटरमीडिएट कितने पॉइंट की बात कर रहे थे, इंटरमीडिएट में 4 पॉइंट, एक्सीलरेटेड में हम 3 पॉइंट की, 0, 3 एंड 6. यहाँ पर 0, 3, 6 एंड 12. 6 मंथ की बात की हमने, तो कितना टेम्परेचर है आपको क्या ध्यान में रखना है कि 30 डिग्री ±2 हमको ये ह्यूमिडिटी देनी है. ठीक है, टेम्परेचर
30 प्लस माइनस 2, मतलब 32 भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो सेम 60 प्लस माइनस 5, यहाँ 60 था, यहाँ 65 हो गया, ओके, प्लस माइनस 5 मतलब 60 भी और 70 भी। एसिलिरेटेड में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना है 40 प्लस माइनस 2, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 75 प्लस माइनस 5। अब यदि हम रेफ्रिजरेटर में स्टोरेज कर रहे हैं तो हमें कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पर मीडियम वाले नहीं ली, लॉन्ग टर्म और एसिलिरेटेड। लॉन्ग टर्म में क्या बोल रहा है 5 प्लस माइनस 3, और एसिलिरेटेड में टेम्परेचर बोल रहा है 25 प्लस माइनस 2। 12 मंथ के लिए लॉन्ग टर्म कर ले हैं, एसिलेटेड हम 6 मंथ के लिए कर रहे हैं। अब रेफ्रिजरेटर में भी हमने स्टोर कर लिया, देखिए स्टोरेज कंडीशन हमने जनरल भी स्टोर कर लिया है। अब हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में भी कर लिया है, फ्रीज में, अब हमें करना है फ्रीज़र। तो सिर्फ वहाँ एक स्टडी करेंगे लॉन्ग टर्म की, कितनी रहेगी 20 प्लस माइनस 5 फॉर 12 मंथ के लिए। अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी कमिटमेंट क्या है, हम लोग जो प्रपोज जो शेल्फ लाइफ के लिए एक रजिस्ट्रेशन में जो डाटा सबमिट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग कवर होना चाहिए। ये कमिटमेंट है आपका, जो आप बोल रहे हैं वो उसमें कवर हो जाए, और स्टेबिलिटी स्टडी आपको अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल मिल जाए, अब आपको उसी अकॉर्डिंग वर्क करना है। दिस इज योर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी कमिटमेंट बोला है यहाँ पे क्योंकि स्टेबिलिटी रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। इन केस वेयर डाटा सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन डू नॉट कवर, यदि नहीं करता है तो आपको कंटिन्यू करनी है सेल्फ स्टडी और पोस्ट अप्रूवल। अब वापस आपको एक अप्रूवल और लेना है, यदि आपने जो बोला है उसको यदि कवर कर जाता है तो अब आपको पोस्ट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने के लिए रेडी है। पर जब हम कंपेयर द सबमिशन ऑफ लॉन्ग टर्म 3 सालों के लिए चलिए, इतनी देर तक प्रोडक्ट थोड़ी ना रहेगा, तो ये बोल रहा है कि 3 प्रोडक्शन बैच को कवर कर ले बस, उसके बाद पोस्ट अप्रूवल की कोई कंसिडर्ड अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं रहेगी पोस्ट अप्रूवल की। यहाँ पोस्ट अप्रूवल की रिक्वायर है जो आपने कमिटमेंट किया और वो आपको कवर नहीं करते हैं तो ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टडी में ऐसा नहीं है, आपको जो बैचेस आपको 3 बैच में वो कवर कर दीजिए, उसके बाद पोस्ट अप्रूवल की कोई भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है। इवैल्यूएशन की बात करें, अब हम इवैल्यूएशन पर आए। पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी स्टडी एस्टेब्लिश द रीटेस्ट पीरियड ऑफ ड्रग सब्सटेंस। डीएस क्या है, ड्रग सब्सटेंस। यस, शेल्फ लाइफ फॉर फ्यूचर जो बैच है उसके बेस्ड पर इवैल्यूएशन रिजल्ट क्या रहेगा, क्या केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, माइक्रोबियल जो भी टेस्ट होंगे, जो भी हम उसमें बताना है क्या उद्देश्य है आपका, ठीक है। द पर्पस ऑफ द स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ एस्टैब्लिश रीटेस्ट करना इवैल्यूएशन में, वो चलते चलेगा अपने शेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या बोलती है, ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच शुड बी अडोप्टेड, वो ही सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट होनी चाहिए जो इवैल्यूएशन की स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन देता है। और वो सब क्या क्या अपन को कवर करने चाहिए, क्या क्या रिजल्ट होने चाहिए उन सब में, फिजिकल टेस्टिंग का, केमिकल टेस्टिंग, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल, ये सभी आपके डोजेस फॉर्म में कंट्रीब्यूशन करते हैं। आपको ये सब चीज़ें अफेक्ट है, जैसे डिसोल्यूशन रेट हुआ, डिसइंटीग्रेशन रेट हुआ, वो सब चीज़ें ठीक है कवर करती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबलिंग, स्टेबिलिटी स्टोरेज लेबलिंग, दिस इज द मोस्ट स्टेबिलिटी स्टडी, क्योंकि एक तो हमने अपने स्टोरेज एक्सपायरी डेट बताया, एक हमने उसका टेम्परेचर बता दिया कि हमें कब कहाँ कैसे रखना है, उसकी प्रॉपर्टी क्वालिटी को कोई इफेक्ट ना हो, स्टेबिलिटी को कोई इफेक्ट ना हो। स्टोरेज स्टेटमेंट शुड बी एस्टेब्लिश फॉर द लेबलिंग अकॉर्डिंग विद द रिलीवेंट, जो भी रिलीवेंट नेशनल है, रीजनल है, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम स्टोरेज कंडीशन रखेंगे। स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी इवैल्यूएशन, जो भी हमने ड्रग प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी इवैल्यूएशन किया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देयर शुड बी ए डायरेक्ट लिंक, एक लिंक होना चाहिए बिटवीन किस किस के, लेबल स्टोरेज स्टेटमेंट के बीच में एंड द डेमोन्स्ट्रेटेड स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। अब हमने जो इतनी स्टडी की, जो हम इतनी आगे स्टेप, वो क्या बताता है कि आपका प्रोडक्ट कितना एक्सपायर होगा। तो एन एक्सपायरेशन डेट शुड बी डिस्प्ले इन कंटेनर लेबल पे, और हमेशा होती है सभी पर, और वो कहाँ से आती है, जब हम स्टेबिलिटी स्टडी को करते हैं तब। यस, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ write in the comment box. I will give your answer. Thank you so much. Please like, comment and share and subscribe for new one.